नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 11, साथ में 21 और 22 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का सेशन हमारा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी एमसीक्यू होंगे मैं इंग्लिश में बोलूँगा और करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है आपका, विच मार्केट इज एसोसिएटेड विथ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट दैट आर क्लोज substitute of money? Answer is money market. Next question is, name the three sub market of the Indian money market. Answer is call money market, notice money market and term money market. Next question, under call money market funds are transacted on what basis? Answer is overnight basis. What is answer? Overnight basis. Next question, under notice money market funds are transacted for a period between 2 days and 14 days. 2 days and 14 days. Next question, fund under the term money market are transacted for a period between 15 days and 365 days. 15 days and 365 days. Next question, name the money market instrument which is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. Answer is commercial paper. What is answer? Commercial papers. Next question, which financial institute are permitted to participate in call notice money market both as borrowers and lenders? Answer is scheduled commercial banks excluding RRBs and cooperative banks, including cooperative banks. Next question is, primary dealers and all India finance institutions were also permitted to issue commercial paper to enable them to meet their शॉर्ट टर्म बेसिस फंडिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमर्शियल पेपर shall be issued in denomination of 5 lakh and multiple thereof. Next question, name the negotiable money market instrument which is issued in dematerialized form or as a usance promissory note against fund deposited at bank or other eligible financial institution for a specified time period. Answer is certificate of deposit. Answer is certificate of deposit. Next question, what should be minimum amount of certificate of deposit? Answer is 1 lakh rupees. Answer is 1 lakh rupees. Next question, maximum maturity period of certificate of deposit issued by bank is 1 year. Answer is 1 year. Next question, financial institutions can issue certificates of deposit for a period not less than 1 year and not exceeding 3 years from the date of issue. Next question, non-convertible debentures is debt instrument issued by corporate including NBFC. Next question, minimum maturity period of non-convertible debentures. Answer is 90 days. कितना? 19 days. 90 days, sorry. Next, non-convertible debentures may be issued in denomination with a minimum amount of 5 lakh. NCD का डिनोमिनेशन कितना होता मिनिमम 5 लाख रुपए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, primary dealers is a financial institution which holds a valid letter of authorization SPD issued by the Reserve Bank of India. Answer is the Reserve Bank of India. What is the full form of IPA? Answer is issuing and paying agent. Issuing and paying agent. Next question, CRA means a credit rating agency regulated by Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India. Next question, a tradable instrument issued by a central government or state government is known as government securities. Answer is government securities. GSEC. Next question, dash are called as free
गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट? आंसर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कौन से है? रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ट्रेजरी बिल्स OT bills are short term debt instrument issued by government of India and are presently issued in three tenures, namely 91 days, 182 days and 364 days. Next question, what is the full form of CMBs? Answer is cash management bill. क्या है आंसर? कैश मैनेजमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the tenure of dated G-Secs security range from? आंसर इज 5 years to 40 years. क्या है आंसर? 5 years to 40 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड with a basic unit of 1 gram. This 1 gram. Next question, the loan raised by state government from the market are called state development loans. State development loans. Next question, OMOs are market operations conducted by Reserve Bank of India. ठीक है, OMOs are market operation conducted by Reserve Bank of India. LAF is a facility extended by RBI to scheduled commercial banks, excluding RBI and PD to avail of liquidity in case of requirement. What is the full form of LAF? Liquidity Adjustment Facility. Liquidity Adjustment Facility. RBI has launched NDS-OM web on negotiable dealing system order matching in 2015. कब किया था? NDS-MO वेब नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मशीन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CCIL इज अ क्लियरिंग एजेंसी फॉर G-Secs. फुल फॉर्म ऑफ CCIL इज क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया was incorporated as company under Section 25 of Company Act 1956 on 1998. Answer is 1998. Next question, name the market which deals with the trading of long-term security. Answer is capital market. What is the answer? Capital market. Capital market consists of two types of market, namely primary market and secondary market. What is primary market and secondary market? In share market, IPO known as initial public offering. Answer is initial public offering. A market where securities are traded are being initially offered to public in the primary market and or listed on the stock exchange is known as secondary market. What is name? Secondary market. Next question, what are the instrument of capital market? Answer is equity, yes. Cumulative of preference shares, yes. Cumulative convertible preference share, yes. Debentures, yes. All of the above. STT is a tax being levied on transaction done on the stock exchange at a rate prescribed by the central government from the time to time. Full form of STT is Security Transaction Tax. Security Transaction Tax. Next question, what is the effect of decrease in capital on market? Answer is increase in interest rate. Answer is increase interest rate. Next question, on the balance sheet, accruals note payable and account payable are listed under the which category? The answer is current liabilities. What is the answer? Current liabilities. Next question and last question, FIMMDA stands for? Answer is Fixed Income Money Market and Derivative Association. फुल फॉर्म क्या है FIMMDA का? फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन. ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 11 हुआ. फाइनेंशियल मार्केट हो चुका है. ये 40 सवाल हो चुके हैं इसके ऊपर बेस. अब बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ की. इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू कम अप इन असम. ठीक है, पहली न्यूज़ है आज की कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो वो असम में किया जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ ओपन किया जाएगा या कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो असम में किया जाएगा. ठीक है, द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर द भारत एम्बिशियस भारतमाला परियोजना. भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा. और कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये असम के
जोगी गोपा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? आसाम के जोगी गोपा में। अगला सवाल है आपका, यूपी गवर्नर लॉन्चेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट अ वुमेन्स सेफ्टी कैंपेन इन लखनऊ। ठीक है, यूपी की गवर्नर ने महिलाओं के सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश। किसने करी है? आनंदीबेन पटेल ने, जो कि राज्यपाल है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे करी गई है? तो ये करी गई है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है आपका, India successfully flight test indigenously developed stand-off anti-tank SANT missile from a ground-based platform Odisha coast. The missile can destroy target 15 km to 20 km away. भारत ने, ठीक है, सफलतापूर्वक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड, माफ़ कीजिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। इसका नाम क्या है? सेंट। ठीक है, ये क्या है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित ही टैंक को मार सकती है। ये टैंक के लिए है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ्को ऑर्गेनिक जेवी विथ सिक्किम गवर्नमेंट SIFCO being construct of the integrated food processing unit at रंगोपो सिक्किम। अब क्वेश्चन क्या, अब खबर क्या है कि सिक्किम में खुलेगा पहला क्या? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पे? रंगोपो में खुलेगा क्या? फूड प्रोसेसिंग यूनिट सिक्किम का। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप है? इफ्को ऑर्गेनिक के साथ है, सिक्किम गवर्नमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, सिक्किम को अपना पहला इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिलने वाली है, तो ये सिक्किम सरकार ने किस कंपनी के साथ MOU करा है? तो आंसर है इफ्को ऑर्गेनिक जेवी। अगला सवाल है, इंडिया टू गेट 177 मिलियन लोन फ्रॉम ADB फॉर महाराष्ट्र रोड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, महाराष्ट्र सड़क सुधार हेतु भारत और ADB के बीच 177 मिलियन का जो है, भारत ने ADB से 177 मिलियन की डॉलर की बोरोइंग करी है। ठीक है, महाराष्ट्र की 450 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उसको वापस से इम्प्रूव करना है। इसके लिए भारत सरकार ने ADB से 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। अगला सवाल है, श्री मनसुख मंडाविया लॉन्चेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर VTS एंड VTMS। ठीक है, VTS and VTMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर डिटरमाइनिंग वेसल पोजीशन। अब क्या ये सॉफ्टवेयर हैं दोनों की दोनों, जो क्या करते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं वेसल्स की पोजीशन को, यानी कि जो जहाज़ है समुद्र के उसकी पोजीशन को, पोजीशन ऑफ अदर ट्रैफिक, और जो कोई अन्य जहाज है उसके बारे में पता कर सकता है ना। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड वार्निंग एंड एक्सटेंसिवली मैनेज द ट्रैफिक विद इन द पोर्ट और वाटरवेज। ठीक है, रास्ते में कोई भी जोखिम तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें ये करेगा। अब मेड इन इंडिया VTS एंड VTMS सॉफ्टवेयर आर टू पेव द वे ऑफ मेक फॉर द वर्ल्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। श्री मनसुख मंडाविया जी ने ये बोला है। 10 करोड़ सेक्शन टू द IIT चेन्नई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। 10 करोड़ रुपये यहाँ पे IIT चेन्नई यानी कि IIT मद्रास को दे दिए गए हैं। क्वेश्चन यही आएगा, VTMS और VTS जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर है उससे कौन सा IIT डेवलप कर रहा है? तो याद रखना IIT मद्रास या IIT चेन्नई। अगला सवाल, इंडिया रैंक सेकेंड OECD माइग्रेशन आउटलुक इंडेक्स। OECD के माइग्रेशन आउटलुक इंडेक्स में भारत को दूसरा रैंक मिला है। ठीक है, इसमें टॉप किसने करा है? चाइना ने। किसने करा है? चाइना ने। अगला सवाल है, एला वेलारिवन विंस गोल्ड इन शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप। एला वेलारिवन ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। काय में? शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप ने। ठीक है, एला वेलारिवन का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है शूटिंग से है। काय से है? शूटिंग से है। अगला सवाल है, TV एक्ट्रेस जरीन रोशन खान पास अवे ड्यू टू कार्डिया अरेस्ट। ठीक है,
दिग्गज टीवी एक्ट्रेस जरीना रोशन खान का कार्डिया अरेस्ट के कारण क्या हो गया, 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 2014 से टेलीविजन के शो कुमकुम भाग्य में इंदु दादी की भूमिका निभाती थी। ठीक है, अगला सवाल है, श्री प्रधान इनोग्रेट HCNG प्लांट एंड लॉन्च इस ट्रायल इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में एच मतलब हाइड्रोजन CNG प्लांट का उद्घाटन और परीक्षण की शुरुआत की किसने की है, धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, हाइड्रोजन मिश्रित CNG इसमें रित रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आएगा, हाइड्रोजन CNG प्लांट का शुभारंभ कहाँ पे भारत में किया गया है, तो दिल्ली में कराया। किसने करा है, धर्मेंद्र प्रधान ने, केंद्रीय मंत्री हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, ये एक नई बुक लॉन्च हुई है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, जिसे लिखा है NK सिंह ने। किसने, NK सिंह ने। न्यू बुक ट्रेस ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द PMO। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर बुक के रचयिता कौन है, तो याद रखना है NK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RPF लॉन्च मेरी सहेली इनिशिएटिव इन अमरावती एक्सप्रेस बिटवीन विजयवाड़ा एंड हुबली। ठीक है, RPF ने क्या अमरावती एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल शुरू की है। अब देखिए क्या है, रेलवे ने क्या किया है कि रेलवे के सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ट्रेन में यात्रा करने वाली महिलाओं की यात्रियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के हेतु विजयवाड़ा हुबली के बीच अमरावती एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। इस पहल हेतु एक RPF महिला उप निरीक्षक और कुछ कांस्टेबल की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया है, जो कोरोना वायरस प्रोटोकॉल व दिशा निर्देश के साथ महिला यात्रियों की निरीक्षण व ब्रीफिंग करती रहेंगी। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 182 भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें महिला पुलिसों को लगा दिया गया है कि वहाँ पे देखरेख करेंगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पुलिस commemoration day is observed on every year on 21st October to remembrance the brave policemen who sacrificed their lives while discharging their duties. नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिजिनियसली बिल्ड ASW कावारत्ती कमीशन इनटू द इंडियन नेवी बाय इंडिया आर्मी चीफ। ठीक है, अब ASW का मतलब क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, कावारत्ती ASW कावारत्ती को जो है क्या करा गया है, कमीशन कर दिया गया है, कहाँ में, इंडियन नेवी में शामिल कर लिया, अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है इंडियन नेवी द्वारा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर द अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। उत्तर प्रदेश क्या बन के उभरा है, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है 2019 में। क्वेश्चन यही है, डोमेस्टिक अगर बात करें हम डोमेस्टिक टूरिज़्म की, यानी कि जो अगर भारत के लोग हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जो भारत का सबसे ज़्यादा यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक ऑन मंडे लॉन्च द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड मोबाइल ऐप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मो विद्युत मोबाइल ऐप और पोर्टल किसने शुरू करा है, तो याद रखना है नवीन पटनायक ने। वो कहाँ का है, ये ओडिशा का है। याद रखिए जिसमें भी मो लगे वो कहाँ गया, ओडिशा, और मी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस इको फ्रेंडली इफिशिएंटी एंड DME फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच यूनिट एट CSIR NCL पुणे। अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या करा है, साइंटिफिक CSIR NCL में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है पुणे में, वहाँ पर अदिति ऊर्जा सांच यूनिट का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन बस यही आएगा कि अदिति ऊर्जा सांच यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो आंसर है आपका पुणे में। ठीक है, कहाँ पे है, पुणे में। अगला सवाल है आपका,
द 6th India International Science Festival to be held in virtual format from 22nd to 25th December 2020. It will be a reflection on Indian science and technology innovation for आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि 6वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब होगा, 22 से लेके, माफ़ कीजिएगा, 22 से लेके 25 दिसंबर तक होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, ये तो वर्चुअली फॉर्म में होगा, यानी वेन्यू तो पूछेगा नहीं वहाँ पे, तो ये पूछा जाएगा इसको इनॉग्रेट किसने करा और एडिशन कौन सा था। तो कौन सा एडिशन था, 6ठा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अभी हाल ही में आभासी रूप में आयोजित हुआ, इसका कौन सा संस्करण था, तो याद रखना है 6ठा संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 6ठा संस्करण। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।